Assalamualaikum dear students, it's Javaid Ahmad Shah with you. We are going through the lesson Colors of Rainbow of Class 8th English textbook. We have read the first two parts of this lesson. You can watch them in the first two videos. Today we are at page number 93, going to read the third part of this lesson. In the previous video, जो पुरानी वीडियो है उसमें हमने देखा था there was a dialogue between narrator and his daughter. नरेटर अपनी बच्ची से बात कर रहा था, अपनी बेटी से बात कर रहा था जिसका नाम मुन्नी था, रिगार्डिंग द रेनबो अप इन द स्काईज, वो दानव के बारे में जो स्काई पे थी. आफ्टर दैट नरेटर वाज लॉस्ट इन हिज थॉट्स. ही थॉट अबाउट द ड्रीम्स ही हैड इन हिज चाइल्डहुड अबाउट मैरिज एंड लाइफ. वो अपने ख्यालों में खो गया, कहानी सुनाने वाला. बट आफ्टर मैरिज ही हैड टू फेस वेरी डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल पोजिशंस. जो उसकी माली हालत थी वो बहुत ख़राब हो गई शादी के बाद. एंड ऑल हिज ड्रीम्स रिमेन्ड अनफुलफिल्ड. और जो उसके ख्वाब थे बचपन में उसने देखे थे, जो उसकी तमन्नाएं थी, विशेष थी, वो पूरी न हुई. इन द मीन वाइल हिज वाइफ एंटर्ड द रूम. द सीन हेयर, उसकी बीवी फिर कमरे में दाखिल होगी. तो आज का सबक शुरू होगा उसकी बीवी के अल्फाजों से. जिस कोट हेयर, I have been shouting for you for so long. मैं कब से आपको चिल्ला रही हूँ, आवाज़ दे रही हूँ. Are you going to have your tea or not? आपको चाय पीनी है कि नहीं. You must have got fed up with me. आप मुझसे तंग आ गए हो. Fed up means frustrate or annoyed, यानी तंग आ चुकना. But I am no less fed up with you. मैं आपसे कम तंग नहीं आई हूँ. What happiness have I got since I came to this house? I have not got any happiness since I came here. I have not seen a moment of joy here. मुझे कौन सी खुशी मिली जब से मैं इस घर में आई हूँ. I start working as soon as I get up in the morning and I go on and on till late at night. I start working. मैं काम करना शुरू करती हूँ. As soon as I get up in the morning. As soon as is a conjunction. It means immediately after. इसके फ़ौरन बाद. I get up in the morning. जब मैं सुबह उठती हूँ. To get up means to rise from one's bed. And I go on and on. मैं continue करती हूँ. It means a sort of continuous action. लगातार काम करना. Till late at night. रात देर गए तक मैं काम करती हूँ. See what has happened to my health. See, आप देखो. What has happened to my health. मेरी सेहत को क्या हुआ है. मेरी सेहत ख़राब हो गई है. My health has deteriorated with lentil soup. मसूर की दाल से. Here in this lentil, it's a plant having edible lens-shaped seeds with flattened pods, जिसे हम मसूर कहते हैं. एंड बुद्धि प्रकाश, और इस बुद्धि प्रकाश से मुझे रोज़ लेंटिल सूप मिलता है, मसूर की दाल मिलती है और बुद्धि प्रकाश मिलता है. तो इससे मेरी सेहत ख़राब हो गई है. I sat without a word. The narrator tells that he sat without a word. नरेटर छुपके से बैठ गया और कुछ नहीं कहा. Stunned. He was shocked. To stun means to shock. When you are unable to respond. आप कुछ जवाब नहीं दे सकते हो, आपको शॉक लगता है किसी की बात से. That kind of a situation was here for narrator. I lost sight of the 7-colored swing and shouted. वो 7 रंगों वाला झूला मैं भूल गया. मुझे उसका जो याद ही नहीं रहा अब क्या है. वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया. And shouted, और मैंने चीख के बोला. Shouted, ज़ोर से कहना, चीख के बोलना. I don't want any tea. मुझे चाय नहीं चाहिए. It's better to drink poison than have tea from the hands of a woman like you. It's better to drink poison. इससे अच्छा तो है जहर खाना. Poison, जहर. Than have tea. इस चीज़ से कि चाय पीऊँ मैं. From the hands of a woman like you. आपके हाथों से, आप जैसी औरत के हाथों से चाय पीने से तो बेहतर है मैं जहर पीऊँ. Who the hell are you to tell me to have tea? आप कौन होती हो मुझे कहने वाली चाय पीऊँ. Now, what's the reaction of his wife? अब देखना है बीवी क्या कहती है. Seeing me in an angry mood. जब उसने मुझे देखा मैं एंग्री हूँ, मैं नाराज़ हूँ. She turned to go to the kitchen. वो चली गई किचन में. Saying, और लेकिन इसने एक बात कही. Here these are some important, this is an important quote, this is an important sentence here.
यू डोंट हैव टू ड्रिप पॉइजन फ्रॉम माई हैंड, आपको मेरे हाथ से जहर खाने की क्या ज़रूरत है। टेक इट फ्रॉम दोज फॉर हुम यू फील कंसर्नड, आप उसी के हाथ से जहर खाओ जिसकी आपको फिक्र है। द नरेटर इन द सेकंड, जो इसके फ़ौरन बाद सेंटेंस है, वो कहता है दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए न्यू एक्विजिशन, ये उसका इल्ज़ाम था। देखिए, इट फ्रॉम दोज फॉर हुम यू फील कंसर्न, जिनकी आपको फिक्र है, दैट मीन्स आपको मेरी फिक्र नहीं है, आपको किसी और की फिक्र है। ये तो एक तरह का इल्ज़ाम है इधर। इट टचड मी टू द क्विक, इट टचड मी टू द क्विक, इसकी बात जो मुझे है वो मुझे चुभ गई। टू द क्विक, टू द क्विक इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये याद रखिए। टू द क्विक इट्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, इट मीन्स वेरी डीप, बहुत गहरा, यानी एट वंस मोस्ट सेंसिटिव लेवल ऑफ फीलिंग, जो आपकी गहरी सेंसिटिव लेवल है उस तक कोई बात पहुंचना। इट वॉज अ न्यू एक्यूजेशन, ये तो एक नया इल्ज़ाम था। एक्यूजेशन मीन्स इल्ज़ाम। आई गॉट अप इन हफ, मैं जो है गुस्से से मैं उठा, मैं खड़ा हो गया गुस्से से। इन हफ, आप मतलब सांस, गहरी सांस लेते हो, छोड़ते हो, उफ जैसा करते हो। समथिंग हैड स्टार्टेड ब्रेविंग विद इन, मेरे अंदर कुछ जो है पक रहा था, कुछ शुरू हो रहा था। ब्रेव, तो ब्रेविंग मीन्स अबाउट टू हैपन, कुछ ना कुछ अंदर हो रहा था, मैं रिएक्ट कर रहा था। ओके, विथन, मेरे अंदर। जस्ट देन माई मदर केम इन, फिर मेरी माँ आ गई उसी समय, उसी वक्त। वाई डू यू कॉल, आप झगड़ा क्यों करते हो, आप लड़ते क्यों हो। एंड हर्ट ईच अदर लाइक दिस, और एक दूसरे को ऐसे परेशान करते हो, एक दूसरे को ऐसे सजा दे रहे हो। यू आर ग्रोन अप नाउ, आप तो अब बड़े हो। यू शुड थिंक अबाउट यूर चिल्ड्रन आल्सो, आपको अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। वट इम्प्रेशंस विल दे कैरी एंड चेरिश, हेयर इज अ very beautiful sentence in the lesson. What impressions will they carry and cherish, अगर इसका उर्दू माने देखेंगे, what impressions will they carry, उन पे क्या असर पड़ेगा, and cherish, और वो क्या करेंगे। here it means that they will follow your behavior, वो तो वही करेंगे जो आप करते हो, बड़े हो के वो भी यही करेंगे, वो भी लड़ेंगे अपने पार्टनर से। that means it will create a bad impression for you, जो आपको एक बुरा इंप्रेशन पड़ेगा आपके बच्चों पे। तो नरेटर कहता है, आई स्लिप्ड माई शूज़, मैंने अपने जूते पहने, एंड वेंट ऑन, एंड वेंट आउट, और मैं, वेंट आउट मीन्स टू गो आउट, टू लीव वंस अबाउट, जहाँ बैठे हो उस जगह को छोड़ना। तो आप उसने जूते पहने और चला गया। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।